امام یافعی لکھتے ہیں کہ دو دوست تھے، دو دوستوں میں آپس میں محبت اور پیار تھا۔ ایک دوست کی کرامت یہ تھی، دوست کی کرامت، کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ۔ تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے، یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار، یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا، نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا، یار تو سب کو نہیں بتاتا، مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے؟ اس نے کہا، یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ، میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا۔ دیکھو جوانی دیوانی ہوتی، جوانی دیوانی ہوتی۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی۔ جی درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کسی کو نہیں بتایا، دوستوں کو بتایا۔ میں جوان تھا، مالدار تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی، آنکھیں چار ہو گئی۔ میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا، پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، اس لڑکی کو میں حاصل کروں۔ جنون تھا، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی بہت جنونی ہو، جنون کہتے ہی پاگل پن کو ہے۔ جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جنون ضرور ہو جوانی میں، لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون، محبت رسول کا جنون۔ ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ اور عشق کو تڑپاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اور عشق کو ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے۔ ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے۔ اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے۔ اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا۔ لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی۔ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی اس کی اس کی، کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتا ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتا چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونا، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت
बहादुर शाह जफर ने बड़ी हसरत से कहा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में गुजरे 2 इंतजार में। ये दुनिया है, सिर्फ 2 दिन की। और इतने बड़े बादशाह को खुद की जमीन पर कब्र नसीब न हुई, ये दुनिया है। देखे तो से हैं, बहादुर शाह जफर की कब्र अंडमान के जजीरे में है। इतने बड़े अखंड भारत का बादशाह, उसके जनाजे में 50 लोग शरीक न हो। ये दुनिया है, दुनिया से। ताजमहल में जो 200 नाश्तों की डिश लगाया करता था, उसके जनाजे में 50 लोग नहीं थे। और बहादुर शाह जफर की जिंदगी का जो आखिरी दिन था, फटी हुई टोपी थी, खादी का कुर्ता था और मैले कपड़े थे। और जब अंग्रेजों से वो आखिरी मुकद्दमा लड़ रहे थे तो जबान कुछ बोल रही थी, हाथ इशारे कुछ कर रहे थे, यानी हाथ भी इशारों से साथ नहीं दे रहे थे। क्यों? इसलिए कि उस दिन बहादुर शाह इतना भूखा था कि भूख की वजह से उसकी अकल काम नहीं कर। ये दुनिया है। किस दुनिया पे ललचा रहे हो? किस रोटी कपड़े मकान पे ललचा रहे हो? थोड़ा ख्याल कर लो। दुनिया किसी के साथ, हुजूर से लिपट जाओ, हुजूर के कदमों से लिपट जाओ। सब कुछ अपना ही अपना है। हुजूर सब कुछ है अल्लाह के बाद, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उनसे लिपट जाओ, उनके मजहब को छोड़ कर न जाओ, उनका घर छोड़ कर न जाओ। ये इस्लाम उनका घर है, इसी से लिपट करके रहो। ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो काफिला तो ए रजा। अव्वल गया आखिर गया। और मेरे इमाम कहते, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों? सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? अल्लाह अकबर। वो कहता है कि माल था, दौलत थी, सब था, मैंने लड़की को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मेरे दामे फरेब में बिल्कुल ना आई। बिल आखिर उसकी शादी हो गई। उस पाक दामन नेक लड़की की शादी हो गई तो हमारे इलाके में कहत आ गया तो हर गरीब मालदारों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा अल्लाह ने हमें माल दिया, दौलत दिया है, तुम गरीबों में माल तकसीम कर दो। कोरोना में आपने देखा ना गरीबों का क्या हुआ था, गरीब क्या मालदारों का क्या हुआ था, आपने देखा। उस जमाने में कहत था, हर गरीब मालदार के दरवाजे पे खड़ा था। वो नौजवान अपने दोस्त को वाकया सुनाते हुए कहता है कि मैंने देखा कि कतार में जो लोग लगे हुए थे, उस कतार के अंदर, उस क्यू के अंदर वो लड़की भी लगी हुई थी जिससे मैं प्यार करता। बहुत अरसे बाद वो लड़की दिखी तो मैंने सोचा, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी मजबूरी का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। और मैंने अपने नौकरों से कहा, तुम इन सबको तकसीम करो। वो लड़की को लेके मैं कमरे में आया और लड़की से कहा, लड़की तू क्यों आई है? उसने कहा कि मैं बेवा हो गई हूं, 3 मेरे बच्चे हैं और तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे बच्चे भूख से बिलक और तड़प रहे हैं, तो मैं बच्चों की वजह से तेरे दरवाजे पर आई हूं कि तू लोगों को भीख दे रहा है तो मुझे भी दे दे। वो नौजवान कहता है, मुझ पर शैतान गालिब आया और मैंने लड़की से कहा, तू जो कहेगी मैं दूंगा, दौलत में तुझे तौल दूंगा, अनाज क्या तुझे दौलत में तौल दूंगा। बस एक काम कर, अपना जिस्म मुझे सौंप दे ताकि मैं उससे लुत्फ अंदोज हो जाऊं। यानी उसने ज़िना की पेशकश की, बदकारी की पेशकश की। पता है वो लड़की गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। नेक माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की थी। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साए में लड़की ने फौरन एक जुमला कहा, ऐ नौजवान अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? अरे सारे दरवाजे तेरे घर के बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान जो खुलता है, उस दरवाजे को तू बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कहा, अगर तू अपना जिस्म मुझे नहीं सौंपेगी, मेरे साथ बदकारी नहीं करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा, कुछ नहीं देते हो तो मैं आबरू बेचकर तो अनाज कमा नहीं सकती, रोटी कमा नहीं सकती। वो वापस क्या हुई? उसके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नन्हे बच्चों को मां थी तड़पता नहीं देख सकती थी। मां होती है, मां की ममता होती है। एक मां अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मैं तुम्हें क्या ममता सिखाऊं, तुमसे ज्यादा ममता कौन जाने, क्योंकि तुम मां हो। मैं किस तरीके से तुम्हें ममता बताऊं? मां अगर मुर्गी होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है, चिड़िया होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है। अरे मां अगर वहशी
कुतिया होती है तो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात रसूलुल्लाह की उम्मत में हो तो वो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। उस माँ ने अपने बच्चों को बिलखता और तड़पता देखा, माँ से रहा न गया, घर से ये सोच करके निकली बच्चों की जान बचाना है तो आबरू का सौदा कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना ये शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह न, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा? ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी मेरी बहनों। उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी? जबान से हां निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू जो कहेगी मैं देने तैयार हूं, बस इतना कि अपना जिस्म दे दे, उसने उस शख्स से कहा खबरदार, अच्छी तरह याद रख, मैं आबरू दे करके बच्चों बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से इसने कहा बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से उसने दुआ की है मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है। खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। इसलिए मैं इस सुन्नी इज्तिमा में अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, सब कुछ कुर्बान कर देना, 2 चीजें बचा लेना, दुनिया और आखिरत सब संवर जाएगी। एक ईमान बचा लो और एक इज्जत बचा लो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है।